ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 4 ਦਸੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ, ਪੀਸੀਐਸ, ਐਸਐਸਸੀ, ਸੀਜੀਐਲ, ਸੀਐਚਐਸਐਲ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਟਿਕ ਫੈਕਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਓਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, WhatsApp, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਐਬੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਸਲੇਵਰੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਐਬੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਸਲੇਵਰੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਲਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਿਟਰੇਸੀ ਡੇ ਵੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਥਾਈਲ ਆਈਸੋਸਾਈਨਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਡੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਚਯੁਤਾ ਸਾਮੰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਲੀਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਵਾਲੀਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਚਯੁਤਾ ਸਾਮੰਤਾ। 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਵਾਲੀਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਚਯੁਤਾ ਸਾਮੰਤਾ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ US ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਮੋਸਟ ਪੋਲਿਊਟਡ ਸਿਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। 2nd ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ 3rd ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਨੇਪਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਨੇਪਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੇਵਲ ਵਰਜ਼ਨ ਆਫ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਸਾਈਲ। ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਸਾਈਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਸਾਈਲ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇसी ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਰਿਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਭਰ ਔਰ ਮੋਸਕੋਵਾ ਰਿਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਸਾਈਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਸ ਦੇ 3 ਵਰਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਟਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਿਪਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਬਮਰੀਨਸ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਸਾਈਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਏਅਰ ਵਰਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਲੈਂਡ ਵਰਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਨੇਵਲ ਵਰਜ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ INS ਰਨ ਵਿਜੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਰਥ ਸਾਇੰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਦੇ ਲਵੇ ਹੈ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ SCO ਦਾ ਯੰਗ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕੌਨਕਲੇਵ, ਸ਼ੰਘਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯੰਗ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕੌਨਕਲੇਵ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ADB, ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ 430 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਲੋਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ UP ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 430 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਲੋਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ADB ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ। ਇੰਡੈਕਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ IFCN ਡੈਰੀ ਰਿਸਰਚ ਨੈਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ। IFCN
डायरी रिसर्च नैटवर्क द्वारा इंडैक्स रिलीज़ किया गया 20 ग्लोबल डायरी प्रोसैसर्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कि ਜਿਹੜੀ डायरी प्रोडक्ट्स ने मिल्क प्रोडक्ट्स ने इन्हों बनाने ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो अच्छी कंपनी ਕਿਹੜੀ है डेयरी फार्मर्स ऑफ अमेरिका। ठीक है जी। इंडिया के विचों गल करते हैं टॉप किया गया अमूल द्वारा और ओवरऑल इस लिस्ट के विच 8वें नंबर पर रही है। नेक्स्ट है IIT रोपड़ द्वारा IIT एलुमनी काउंसिल के नाल IIT एलुमनी काउंसिल के नाल एग्रीमेंट साइन किया गया, पार्टनरशिप की गई किस दे लई ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लगाने के लिए इन द फील्ड ऑफ एरिया एंड एग्रीटेक एंड वाटर के फील्ड के विच। नेक्स्ट है IIT एलुमनी काउंसिल द्वारा ही इंडिया इनोवेशन नैटवर्क की अगर आप गल करते हैं 12 नेट नाम का इंडिया इनोवेशन नैटवर्क अनाउंस किया गया, लॉन्च किया गया है, जिस दे अंडर क्वांटम टैक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा डिसीज़ की जिन्नी भी इन्फैक्शियस डिसीज़ ने इन्हों के इलाज फाइंड आउट करने के लिए रिसर्च करने के लिए एस्पैशली कोविड-19 के इसनों स्पैसीफिक किया गया सी। ठीक है जी, ताकि 100 टाइम्स फास्टर रिसर्च की जा सके किसी भी सुपर कंप्यूटर तो भी ज़्यादा तेज इंडिया के। संदीप कटारिया नाम इंपोर्टेंट बनेगा, फर्स्ट इंडियन बने ने जिन्होंने अपॉइंट किया गया ग्लोबल CEO ऑफ बाटा। बाटा की गल करते हैं, बाटा की CEO फर्स्ट टाइम इंडियन अपॉइंट किए गए हैं ग्लोबली। बेसिकली इंडिया CEO सीगे ये, तो इन्हों ग्लोबल CEO अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा अनाउंस किया गया थॉमस बैच को री इलैक्ट किया जा सकता है एज ए प्रेजिडेंट। नेक्स्ट है अभय भारद्वाज जो कि राज्यसभा मैंबर से गुजरात तो, नाम इंपोर्टेंट बने, इन्हों की रिसेंटली डेथ हो गई है, इस करके नाम ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंटली ही अपॉइंट किए गए जुलाई 2020 के ही इलैक्ट किए गए राज्यसभा मैंबर, गुजरात तो इलैक्ट किए गए याद रखने। असम गौरमेंट द्वारा एक सुकापा अवार्ड दिता जाता है लिटरेचर के फील्ड के। क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरैक्टली कि सुकापा अवार्ड किस फील्ड के दिता जाता है, म्यूजिक हो सकता है, फिल्म इंडस्ट्री हो सकता है, तो अपना आंसर होएगा लिटरेचर। ठीक है जी। और किसनों दिता गया है, असम गौरमेंट द्वारा दिता जाता है येशे दोरजी को दिता गया है जो कि अरुणाचल प्रदेश तो बिलोंग करते हैं। 3 सालों के एक बार इस अवार्ड को दिता जाता है। ठीक है जी। इसी तरीके क्वेश्चन जिस तरीके सुनंदा सम्मान पूछा जा सकता है, सुनंदा सम्मान किहड़ी सरकार द्वारा दिता जाता है, उड़ीसा द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, सुनंदा पटनायक के नाम तो सुनंदा सम्मान शुरू किया गया सी उड़ीसा गौरमेंट द्वारा। असम रिलेटेड भी न्यूज़ ने डिस्कस करांगे। संगीता श्रीवास्तव फर्स्ट वूमेन वाइस चांसलर बने ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूपी के। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूपी की गल करते हैं, पहले वूमेन वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव। नेक्स्ट है SBI द्वारा NPCI और जापान की JCB इंटरनेशनल को दे नाल मिलके SBI रुपए JCB प्लैटिनम कॉन्टैक्टलैस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया। ठीक है जी। NPCI के फैक्ट इंपोर्टेंट बनने याद रखना है। NPCI नैशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाई गई सी, मुंबई ਦੇ ਵਿੱਚ हैडक्वार्टर है और दिलीप आसबे इस दे हैड ने। इंडियन मैटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जिहड़ा इन्हां द्वारा वार्निंग अनाउंस की गई साइक्लोन के रिलेटेड। एक साइक्लोन है बुरेवी साइक्लोन आ रहा है तमिलनाडु और केरला के विच, इस करके इंडियन मैटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा वार्निंग अनाउंस की गई। IMD की हैडक्वार्टर की गल करते हैं न्यू दिल्ली के विच है और बुरेवी साइक्लोन का जो नाम है ये मालदीव्स द्वारा दिता गया। डिफरेंट साइक्लोन के नाम डिफरेंट कंट्रीज़ द्वारा दिते जाते हैं, तो मालदीव्स द्वारा बुरेवी साइक्लोन का नाम दिता गया। ठीक है, कल आप डिस्कस किए भी किस साइक्लोन को किस नाम के नाल जाना जाता है तो किन्ना द्वारा कहा नाम वो दिते गए हैं। नेक्स्ट है इंडिया अनाउंसड टू मेक अ डैम ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर के उत्ते इंडिया ने अनाउंस किया है कि एक डैम बनाएगा, क्योंकि चाइना ने अनाउंस किया कि डैम बनाएगी। चाइना ने अनाउंस किया, सिमिलरली इंडिया ने भी अनाउंस करता कि असी भी ब्रह्मपुत्र रिवर के उत्ते डैम बनावांगे। इस दे नाल इंडिया द्वारा रोड ब्रिज भी अनाउंस किया गया जिहड़ा कि असम नूं मेघालय के नाल कनैक्ट करेगा। ठीक है जी। इसी दे लई कॉन्ट्रैक्ट दिता गया L&T कंपनी नूं, L&T लार्सन एंड टर्बो कंपनी नूं एग्रीमेंट दिता गया। नेक्स्ट है बोको हरम, कल डिस्कस किया सी आपां ने कि बोको हरम टैररिस्ट ग्रुप है जिहड़ा ये नाइजीरिया का है, जिसने 110 सिविलियंस नूं मार दिता है नाइजीरिया दे विच। नाइजीरिया कैपिटल और करंसी इंपोर्टेंट बनेगी, कैपिटल अबूजा है, करंसी इत्थे नायरा चलती है।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੁਆਰਾ ਫ੍ਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਰੋਡ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਰੋਡ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਕਟਿਮਸ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੁਆਰਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 6 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਔਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਔਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ, ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ। उत्तराखंड मेड इट्स फर्स्ट ईको ब्रिज फॉर स्मॉल एनिमल्स के लिए पहला ईको ब्रिज बनाया गया है उत्तराखंड द्वारा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की गल करते हैं चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन, महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन लॉन्च किए गए मुंबई पुणे महाराष्ट्र के पुणे के चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन बनाए गए। नैक्सट चलते हैं स्टैटिक पोर्शन के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डिस्कस कर रहे हैं तो पौडीचेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्कस करेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आप डिस्कस कर चुके हैं, हुण बर्ड सेंचुरी डिस्कस कर रहे हैं, उस तो बाद आप नैशनल पार्क शुरू कर लाँगे। तो पौंडीचेरी की गल करते तो उसूडू बर्ड सेंचुरी पौंडीचेरी दे विच। राजस्थान भारत बर्ड सेंचुरी राजस्थान दे विच है। डायरैक्ट 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कित्थे है? हरियाणा दे विच। सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा दे विच। इत्थे काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है हमेशा कि सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा दे विच है और सलीम अली नैशनल पार्क है जिहड़ा ये जम्मू एंड कश्मीर दे विच है, याद रखना है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी जम्मू एंड कश्मीर गोवा और सलीम अली नैशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर। और इसा की गल करते हैं चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी। चिल्का लेक नूं ही रामसर साइट है, चिल्का लेक रामसर साइट है और इंडिया की पहली रामसर साइट चुनी गई सी चिल्का लेक। और इसा दे विच है इरुवेदी डॉल्फिन्स इत्थे पाई जांदियां ने चिल्का लेक दे विच, ये भी याद रखना है। इस तो इलावा सूना बेदा टाइगर रिजर्व और चंदका एलीफेंट रिजर्व चंदका एलीफेंट रिजर्व है उड़ीसा दे विच और सूना बेदा टाइगर रिजर्व कित्थे है? उड़ीसा। ठीक है जी, याद रखनी। नैक्सट चलते हैं अज के फर्स्ट क्वेश्चन के वाल। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करांगे, फर्स्ट न्यूज़ डिस्कस करांगे अज दी कि इंटरनेशनल विच डे इज़ ऑब्जर्वड एज इंटरनेशनल डे ऑफ परसनस विद डिसेबिलिटीज़। इंटरनेशनल डे ऑफ परसन विद डिसेबिलिटीज़ किस दिन ऑब्जर्व किया गया? इस दिन नूं कल के दिन ऑब्जर्व किया गया 3 दिसंबर नूं, 3 दिसंबर नूं इस दिन नूं ऑब्जर्व किया गया। ठीक है जी। इस तो इलावा आप 1 दिसंबर नूं भी 3 दिन डिस्कस किए सीगे। इस दे विचों एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे, इस तो इलावा नागालैंड का स्टेटहुड डे और इस तो इलावा BRO का स्टेटहुड डे, BRO का फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया सी। 2 दिसंबर की गल करते हैं, हुणे आप डिस्कस करके हटे हैं 3 दिन 2 दिसंबर को ऑब्जर्व किए ने, याद रखने ने। ठीक है जी। 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ परसनस विद डिसेबिलिटीज़ ऑब्जर्व किया गया। इस जी थीम सी काफ़ी लेंथी सी, थीम एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी क्योंकि लेंथी थीम्स काफ़ी रेयर चांस होंगे लेंथी थीम्स एग्जाम के पूछी जान। ठीक है जी। इस तो अगर आप स्टार्टिंग की याद रखने तो याद रख सकते हो कि बिल्डिंग बैक बेटर टुवार्ड्स एन इंक्लूसिव एक्सेप्टेबल सस्टेनेबल समथिंग, काफ़ी लंबी थीम सी, डायरेक्टली याद रख सकते हैं बिल्डिंग बैक बेटर। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि विच हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर 12,000 ODI रनस इन 242 इनिंग्स। बेसिकली आप डिस्कस किया विराट कोहली का नाम, रिसेंटली आप डिस्कस किया विराट कोहली ने 22,000 रनस बनाए सी, 22,000 इंटरनेशनल रनस बनाए सीगे। ठीक है। हुण इसी सीरीज़ दे विच अगर आप गल करते हैं 12,000 ODI रनस बनाए गए ने, ODI रनस बनाए गए ने, यानी कि 1 डे इंटरनेशनल रनस बनाने वाले भी विराट कोहली बने ने। ठीक है। ये 22,000 टोटल से इंटरनेशनल से और 12,000 ODI रनस बनाए ने 242 इनिंग्स दे विच। ठीक है जी। ये भी किन्ना ने बनाए ने? विराट कोहली ने। जिहड़ा इंडिया आस्ट्रेलिया का टूर चल रहा है उस दे विच जिहड़ा लास्ट 3rd मैच सीगा इंडिया ने जित के, इन्होंने विराट कोहली ने अपने इनिंग्स नूं पूरा किया। ठीक है जी। डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल दे विच। इस तो इलावा हार्दिक पांड्या द्वारा भी एक रिकॉर्ड बनाया गया, इन्हों के बारे भी डिस्कस करते हैं। सब तो पहले विराट कोहली फास्टेस्ट क्रिकेटर बने ने 12,000 ODI रनस बनाने वाले 242 इनिंग्स दे विच, 242 इनिंग्स दे विच। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़िया सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड है 300 इनिंग्स का और रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड सीगा 314 इनिंग्स का। रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर ने
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ 314 ਇਨਿੰਗਸ ਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ 242 ਇਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 12000 ODI ਰਨਸ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 22000 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਨਸ ਬਣਾਏ ਸੀ 462 ਇਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 462 ਇਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਫਾਸਟੈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1000, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12000 ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1000 ODI ਰਨਸ ਨੂੰ 857 ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ 857 ਬੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਿੰਗਸ ਇੱਥੇ ਮੈਚਿਸ ਨੇ ਔਰ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 857 ਬੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ODI ਰਨਸ, ਵਨ ਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਨਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬਣੇ ਨੇ ਫਾਸਟੈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ 937 ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਦਾ केदार यादव। अगर ओवरऑल इस रिकॉर्ड की गल करते तो रिकॉर्ड एंड्रे रूसल के नाम है जो कि वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर ने। इन्होंने 787 बॉल्स के 787 बॉल्स के 1000 रनस बनाए से। ठीक है जी, याद रखना। नेक्स्ट है विच बैंक साइंड MOU विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 50 मिलियन लोन टू बूस्ट वेस्ट बंगाल्स डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक फाइनेंस रिफॉर्म्स। बेसिकली वेस्ट बंगाल के डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ताकि पब्लिक जोड़े फाइनेंस रिफॉर्म्स ने उन्होंने रिजोल्व किया जा सके। सॉरी ADB द्वारा इसमें साइन किया गया। ADB 5th ऑप्शन ADB। कल भी आप ADB के बारे डिस्कस किया। बेसिकली अगर ADB की गल करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोन्स प्रोवाइड किए गए हैं। अगर लास्ट मंथ और उस तो लास्ट मंथ की गल करते हैं अक्तूबर नवंबर की, काफ़ी लोन्स ADB द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। ADB द्वारा ही वेस्ट बंगाल में रिसेंटली भी 50 मिलियन, ये न्यूज़ पुरानी नहीं है, ये नई है क्योंकि 50 मिलियन और यह 50 मिलियन दोनों अलग अलग ने। वेस्ट बंगाल में ही 50 मिलियन रिसेंटली ADB द्वारा किस दे लिए दिते गए सी, रिसोर्स प्लैनिंग के लिए। और हुण डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए भी 50 मिलियन अनाउंस किए गए। ठीक है जी। इस तो इलावा ADB द्वारा ही रिसेंटली आप मंडी डिस्कस किया। सब तो इंपोर्टेंट रहेगा 9 करोड़ रुपए मंडी के लिए डिस्कस किए। मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश किस दे लिए, मंडी डिस्ट्रिक्ट जो कि ग्राम सड़क योजना फॉर एग्जाम्पल अगर आप गल करते हैं रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना करके न्यूज़ के विच रहा सी। तो इसे मंडी डिस्ट्रिक्ट दी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हिमाचल प्रदेश के 9 करोड़ रुपए दिते गए सी ADB द्वारा। ठीक है, ये ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेगा, याद रखना। इस तो इलावा इन्होंने बैंक्स के फैक्ट आप कल भी डिस्कस किए सी, रिसेंटली 2-3 दिन तो डिस्कस करते आ रहे हैं। कमेंट बॉक्स के मैंने 2 चीज़ां पूछ रहे, नाम दसने कि वर्ल्ड बैंक और IMF का 190th मैंबर केड़ी कंट्री बनी है। ठीक है, इसका आंसर दसने। इस तो इलावा वर्ल्ड बैंक के MD का नाम दसने कमेंट बॉक्स के 2 क्वेश्चन। इस तो इलावा NDB के हैड का नाम दसना, रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं इस करके इन्हों का नाम इंपोर्टेंट बनेगा। तो NDB के हैड का नाम दसना, ADB के वाइस प्रेजिडेंट का नाम कमेंट बॉक्स के दसना। ठीक है जी, ये सारे नाम कमेंट बॉक्स में दसने ने। नेक्स्ट है लुसेडियस एक कंपनी है जो कि भीम एप्लीकेशन जी इंडिया की भीम एप्लीकेशन है, भीम एप्लीकेशन की सिक्योरिटी के काम करती है। ठीक है, इन्हों की जी साइबर सिक्योरिटी होंगी है इसी के लिए ये काम करती है। और इसे द्वारा ही लुसीडियस कंपनी द्वारा भी एक मोबाइल एप्लीकेशन होर लॉन्च की गई है टू प्रोवाइड साइबर सिक्योरिटी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन अलग लॉन्च की गई है। इसका नाम की है, इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है सेफ मी मोबाइल एप्लीकेशन। सैकेंड ऑप्शन सेफ मी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है लुसीडियस कंपनी द्वारा। ठीक है जी, जिस तरीके ना टास्कमेट एप्लीकेशन आप कुछ दिन पहले डिस्कस की थी, गूगल द्वारा लॉन्च की गई सी। ठीक है, तो इंपोर्टेंट बनती है कोई एप्लीकेशन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करती। नेक्स्ट है who has been appointed to organize the activities of swearing in ceremony of USA President Joe Biden and Vice President Kamala Harris on January 20, 2021। बेसिकली अगर आप गल करते हैं USA की, आप डिस्कस किया कि इलैक्शनस होए जो बिडन जित गए ने, तो जो बिडन प्रेजिडेंट बननगे और जो बिडन के जोड़े कमला हैरिस ने वाइस प्रेजिडेंट बननगे। ठीक है, उन्होंने द्वारा अनाउंसमेंट की गई सी कि इंडियन ओरीजन कमला हैरिस नूं ओह अपना वाइस प्रेजिडेंट बनाएंगे, फर्स्ट वूमेन वाइस प्रेजिडेंट बननगे USA के, याद रखने हैं। हुण ये जोड़े इलैक्शनस ने हर साल 3 नवंबर को कंडक्ट किए जाते हैं।
हर साल नहीं सॉरी बेसिकली जी इन्हों की टर्म खत्म होने तो 4 सालों की टर्म होंगी है। तो ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਥ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੈ ਉਹ ਓਥ ਸੈਰੇਮਨੀ ਜਨਵਰੀ 20 ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਥ ਸੈਰੇਮਨੀ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਜੂ ਵਰਗੀਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਓਥ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੈ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਮਾਜੂ ਵਰਗੀਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ 3 ਨਾਮ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ रिसेंटली न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ और तीनों नाम कह सकते हैं कि इंडियन अमेरिकन ने और USA प्रेजिडेंट करके ही जो बिडन करके ही न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ। फॉर एग्जाम्पल विवेक मूर्ति का नाम इंपोर्टेंट बनया सी, ये डॉक्टर ने और इन्हों कोविड-19 के लिए एक टीम बनाई गई सी, उसके हैड अपॉइंट किया गया सी। कोविड-19 के लिए कमेटी बनाई गई, उसके हैड अपॉइंट किए गए विवेक मूर्ति जो बिडन द्वारा ही माला अदीगा नूं पॉलिसी डायरैक्टर अपॉइंट किया गया। पॉलिसी डायरैक्टर अपॉइंट किया गया फर्स्ट लेडी जिल बिडन का। ठीक है। बेसिकली जो बिडन के जोड़े वाइफ ने जिल बिडन उन्होंने पॉलिसी डायरैक्टर अपॉइंट किए गए माला अदीगा। ठीक है जी। इस तो इलावा काश पटेल की गल करते हैं तो काश पटेल भी काश पटेल बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कह सकते हैं अपॉइंटमेंट की गई सी। इन्हों की चीफ ऑफ स्टाफ अपॉइंट किए गए सी। काश पटेल चीफ ऑफ स्टाफ अपॉइंट किए गए सी। डिफेंस सैक्रटरी जोड़े इन्हों के डिफेंस सैक्रटरी होंगे ने उन्होंने द्वारा जोड़े मार्क एस्पर से उन्होंने कह सकते हैं कि उन्होंने रेजिग्नेशन तो बाद एक्टिंग जोड़े अपॉइंट किए गए सी मिलर अपॉइंट किए गए सी। उन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ काश पटेल नूं अपॉइंट किया गया। नैक्सट है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक हाई लेवल मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ टारगेट्स अंडर द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट अंडर चेयरमैनशिप ऑफ। 2 कमेटीज बनाई गई ने, दोनों कमेटीज के बारे बैक टू बैक डिस्कस करांगे। सब तो पहले जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है आप डिस्कस किया सी। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है जोड़ा ये साइन किया गया ताकि जी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसनों रोकया जा सके। ठीक है। क्लाइमेट चेंज करके काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, जी जमीन है बंजर होंदी जा रही है या होर भी जी डिफरेंट परेशानियां ने उन्होंने सोल्व करने के लिए पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट और साइन किया गया सी। तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के विचों एक गल पहले तो यह रखनी है कि रिसेंटली USA द्वारा इस दे विचों एग्जिट किया गया। ठीक है। हुण जी इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, एक पैनल बनाया गया ताकि इस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के जो टारगेट्स ने इंडिया के उन्होंने अचीव किया जा सके। तो इसके हैड अपॉइंट किए गए हैं CK मिश्रा इस कमेटी के हैड अपॉइंट किए गए हैं। बेसिकली CK मिश्रा कौन ने? CK मिश्रा सैक्रटरी ने इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के सैक्रटरी ने CK मिश्रा। ठीक है जी। बाकी ऑप्शंस की गल करते हैं तो अजय भूषण पांडे फाइनैंस और रेवेन्यू सैक्रटरी ने, हर्षवर्धन श्रिंगला फॉरेन सैक्रटरी ने, अजय कुमार डिफेंस सैक्रटरी ने और अपूर्व चंद्रा की गल करते हैं तो यह लेबर सैक्रटरी ने, इंडिया के लेबर सैक्रटरी ने। इन्हों का नाम इंपोर्टेंट रहेगा। रिसेंटली इन्हों का नाम न्यूज़ भी रहा सी क्योंकि ILO की गल करते हैं तो इंडियन लेबर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO है जी उसकी चेयरमैनशिप इंडिया को 35 साल तो बाद मिली है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एज ए कह सकते हैं कि चेयरपर्सन किन्होंने अपॉइंट किया गया है अपूर्व चंद्र। ठीक है जी। हर्षवर्धन श्रिंगला रिसेंटली नेपाल की विजिट पर रहे सी, ये भी याद रखना है। इन्होंने द्वारा उत्थे इंजैक्शनस वगैरह कह सकते हैं कि गिफ्ट दिते गए हैं इन्हों वालों इंडिया वालों इन्हों द्वारा। नैक्सट है एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक द्वारा भी एक कमेटी बनाई गई, एक टास्क फोर्स बनाई गई फॉर प्रिपेयरिंग अ रोड मैप ऑन इम्पार्टिंग टेक्निकल एजुकेशन इन मदर लैंग्वेज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। टैक्नीकल एजुकेशन मदर लैंग्वेज दे विच यानी कि हिंदी दे विच या जी स्टेट की मदर लैंग्वेज है स्टेट लैंग्वेज दे विच प्रोवाइड किया जाए। इस दे लई एक रोड मैप एक कह सकते हैं कि एक पॉलिसी अच्छे तरीके नाल बनाने दे लई एक टास्क फोर्स बनाई गई। उस टास्क फोर्स के हैड कौन ने? उस टास्क फोर्स के हैड अपॉइंट किए गए हैं अमित खरे एजुकेशन सैक्रटरी ने, बेसिकली हायर एजुकेशन सैक्रटरी। ठीक है जी। हायर एजुकेशन सैक्रटरी कौन ने? अमित खरे। इस तो इलावा
इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं बाकी ऑप्शनस की तो तरुण बजाज किहड़े सैक्रटरी ने इकनॉमिक अफेयर्स सैक्रटरी तरुण बजाज रिसेंटली अपॉइंट किए गए सी अतनु चक्रवर्ती की जगह पर। टी.वी. सोमनाथन एक्सपेंडिचर सैक्रटरी, ये इकनॉमिक अफेयर्स और ये एक्सपेंडिचर सैक्रटरी। अजय कुमार भल्ला होम सैक्रटरी, होम सैक्रटरी। और राजीव गौबा की गल करते हैं तो ये इंडिया के कैबिनेट सैक्रटरी ने, कैबिनेट सैक्रटरी राजीव गौबा। ठीक है जी, नाम सारे याद रखने ने इंपोर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टनर्ड विद विच प्लेटफॉर्म टू एम्पावर MSMEs विद इंस्टेंट डिजिटल लोन्स प्रोवाइड करवाने के लिए ईजिली MSMEs नूं एक सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसने पार्टनरशिप की है। किन्ना दे नाल पार्टनरशिप की है, किस प्लेटफॉर्म के नाल पार्टनरशिप की गई है? ये प्लेटफॉर्म की गई है पार्टनरशिप पेटीएम के नाल पार्टनरशिप की गई है। ठीक है जी। अच्छा, पेटीएम की गल करते हैं, हैडक्वार्टर नोएडा के विच है, ये याद रखना है। और इस तो इलावा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के फैक्ट इंपोर्टेंट बन गए। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 2017 के विच ही बनाया गया सी, रिसेंटली बनाया गया, इंपोर्टेंट रहेगा। नवी मुंबई के विच हैडक्वार्टर है। और इसके जोड़े CEO ने भास्कर बाबू इसके CEO ने। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 2017 के विच बनाया गया सी। नेक्स्ट है वर्चुअल एडिशन ऑफ आदि महोत्सव। जिहड़ा आदि महोत्सव है यह वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बेसिकली 10 दिन का फैसटीवल होंदा है, महोत्सव कह सकते हैं यानी फैसटीवल कह सकते हैं। तो इसनूं लॉन्च किया गया किहड़ी मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? विद फोकसिंग स्टेट मध्य प्रदेश MP दे विच फोकस किया गया। बेसिकली की होंदा है कि जिहड़ा आदि महोत्सव है एक कल्चरल फैसटीवल है, तो इस दे विच किसी एक स्टेट के कल्चर ਨੂੰ प्रमोट किया जाता है। कल्चर हो गया या फोक आर्ट्स हो गए या जिन प्रॉपरली कह सकते हैं कल्चर अच्छा वर्ड रहेगा कि कल्चर ਨੂੰ प्रमोट किया जाता है, आर्ट्स एंड कल्चर ਨੂੰ प्रमोट किया जाता है मध्य प्रदेश से। ठीक है, इस साल जी फोकसिंग स्टेट सी वो मध्य प्रदेश है। आदि महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया अर्जुन मुंडा जो कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर खुंती झारखंड तो लोक सभा MP ने। ठीक है जी। इसी दे नाल ये भी याद रखना कि जो नैक्सट एडिशन होएगा उसके फोकस स्टेट गुजरात रहेगी और उस तो बाद जो नैक्सट एडिशन होएगा उसके वैस्ट बंगाल रहेगी। ठीक है, ये याद रखना। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं बाकी ऑप्शनस दे विच किरण रिजिजू स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने अरुणाचल वैस्ट तो लोक सभा MP ने, इन्हां रिलेटेड न्यूज़ है डिस्कस करांगे। मुख्तार अब्बास नकवी की गल करते हैं तो यह अपने मुख्तार अब्बास नकवी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने, राज्य सभा MP ने झारखंड तो। संजय धोत्रे डिप्टी कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने, इस तो इलावा डिप्टी IT मिनिस्टर, होर भी डिप्टी मिनिस्टर्स ने काफ़ी चीज़ों की। डिप्टी एजुकेशन मिनिस्ट्री भी है संजय धोत्रे लवे। RK सिंह की गल करते हैं, पावर और रीन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है, पावर न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री RK सिंह लवे है आरा बिहार तो लोक सभा MP ने। ठीक है, ऑप्शन रिलेटेड कुछ न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं। सब तो पहले किरण रिजिजू यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्टर द्वारा पार्टिसिपेट किया गया ब्रिक्स के यूथ समिट के। ब्रिक्स जिहड़ा ग्रुप है उसके यूथ समिट का 6th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया। किन्ना द्वारा हेल्ड किया गया? रशिया द्वारा होस्ट किया गया। इंडिया किरण रिजिजू द्वारा इस दे विच पार्टिसिपेट किया गया। ठीक है जी। नेक्स्ट है संजय धोत्रे जो कि डिप्टी कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने, इन्हां द्वारा 5 स्टार विलेज पोस्टल स्कीम नूं देहरादून उत्तराखंड दे विच लॉन्च किया गया। 5 स्टार विलेज पोस्टल स्कीम नूं देहरादून उत्तराखंड दे विच लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है पावर एंड रीन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर द्वारा RK सिंह द्वारा ग्रीन चारकोल हैकाथॉन लॉन्च किया गया। बेसिकली जिहड़ा फार्म रेसिड्यू हुंदा है उसनूं ग्रीन चारकोल दे विच कन्वर्ट करने के लिए NTPC की सबसिडरी विद्युत व्यापार निगम, नैशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है जी NTPC है इंडिया की, विद्युत व्यापार निगम और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा मिलकर इसनूं ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है जी, ताकि लोगों को समझाया जा सके किस तरीके नाल फार्म रेसिड्यू नूं ग्रीन चारकोल दे विच कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है
इंडिया हैज़ इनवाइटेड विच कंट्रीज लीडर टू बी द चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे ऑफ 2021। अच्छा क्वेश्चन है कि रिपब्लिक डे ऑफ 2021, रिपब्लिक डे आ रहा है 26 जनवरी ਨੂੰ, तो जी इंडिया का रिपब्लिक डे है उस दे विच चीफ गेस्ट किन्हां नूं बुलाया गया, किन्हां नूं इनवाइट किया गया, यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन नूं इस दे विच इनवाइट किया गया। ठीक है जी, इनवाइट किया गया, हजे आना ना आना उन्होंने वालों हजे कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं 2020 की, तो 2020 के कौन आए सी? 2020 के चीफ गेस्ट से ब्राज़ील के प्राइम मिनिस्टर जैल बोल्सोनारो। ठीक है जी। अगर 2019 की गल करते हैं तो साउथ अफ्रीका के हैड आए सी साइरल रामाफोसा। ठीक है, नाम याद रखने ने इंपोर्टेंट रहेंगे। इस तो इलावा बाकी कंट्रीज़ के रिलेटेड काफ़ी इंपोर्टेंट और अच्छी न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं। सब तो पहले यूके रिलेटेड एक न्यूज़ डिस्कस कर ली अपने। दूसरी न्यूज़ है कि यूके पहली कंट्री बनी है जिसने अप्रूव किया है फिजर बायोटेक कोविड वैक्सीन कंट्री दे विच अप्रूव किया। बेसिकली कंपनी द्वारा दावा किया गया कि 95% तक इस रिजल्ट्स आ रहे हैं इस वैक्सीन दे, तो यूके पहली कंट्री बनी है जिसने इसनूं अप्रूव कर लिया। नैक्सट है यूएसए की गल करते हैं कि इंपोर्टेंट न्यूज़ थी, क्वेश्चन स्टैटिक फॉर्म के पूछा जा सकता है कि जायंट एरीकीबो एक रेडियो टैलीस्कोप है, ये किहड़ी कंट्री का है? ठीक है, या किहड़ी कंट्री का सी? यूएसए का एक टैलीस्कोप सीगा जो कि रेडियो टैलीस्कोप सी 1960s दे विच इसनूं बनाया गया सी। इसनूं जिहड़ा लोकेट किया गया सी प्यूर्तो रीको जिहड़ी स्टेट है यूएसए की, उस दे विच इसनूं लगाया गया सी और यह कलैप्स हो गया। ठीक है, बेसिकली काफ़ी ज़्यादा हैवी सीगा और यह गिर कह सकते हैं कि 1960s दे विच बनाया गया सी, तो काफ़ी ज़्यादा साल हो चुके हैं, तकरीबन 60 साल इस सर्व कर चुके हैं। तो यूएसए का यह टैलीस्कोप गिर गया, यानी कि कह सकते हैं कि खिंड के गिर गया। ठीक है, टुट के डिग गया कह सकते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसीएशन, चाइना रिलेटेड दो इंपोर्टेंट न्यूज़ ने कि सब तो पहले तो एयर ट्रांसपोर्ट एसोसीएशन जिसका हैडकुआटर मॉन्ट्रियल कैनेडा के विच है, इस द्वारा अनाउंस किया गया कि शंघाई सिटी है जी ये मोस्ट कनैक्टेड सिटी है वर्ल्ड की, मोस्ट कनैक्टेड सिटी। इसका मतलब की है कि एयर ट्रांसपोर्ट के नाल काफ़ी ज़्यादा जी फ्लाइट्स ने, इंटरनेशनल फ्लाइट्स ने और डिफरेंट स्टेट्स या डिफरेंट कंट्रीज़ के जांदियां ने शंघाई तो, सब तो ज़्यादा शंघाई तो। नैक्सट है एक होर इंपोर्टेंट एग्रीमेंट पाकिस्तान और चाइना का साइन किया गया। बेसिकली जिहड़ा आज़ाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट है, ये जहलम रिवर के उत्ते है, इस दे लई एग्रीमेंट साइन किया गया पाकिस्तान द्वारा चाइना की गैज़होबा ग्रुप के नाल, आप डायरैक्ट याद रख सकते हैं कि पाकिस्तान ने चाइना के नाल एग्रीमेंट साइन किया आज़ाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट के लिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आज़ाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट किहड़ी रिवर के उत्ते है, तो यह जहलम रिवर के उत्ते है। ठीक है जी। नैक्सट है जो बेसिकली यह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK रीजन के विच है, इस करके ज़्यादा इंपोर्टेंट है। नैक्सट है एक न्यूज़ सी जो कि रशिया के रिलेटेड नहीं सी कह सकते हैं, पर इसनूं किस तरीके नाल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस करके मैंने इस न्यूज़ नूं इत्थे ऐड किया है कि एक इंडिया द्वारा एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, इंडियन एयर फोर्स द्वारा एक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई सरफेस टू एयर कंबाइंड गाइडेड वैपन्स फायरिंग एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। कित्थे कंडक्ट की गई? एयरफोर्स स्टेशन सूर्यलंका आंध्र प्रदेश दे विच, दे विच इस एक्सरसाइज नूं कंडक्ट किया गया। ठीक है जी। इस दे विच एक मिसाइल टेस्ट फाइड की गई है, वह रशिया द्वारा इंडिया ने रशिया तो बोरो की। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक स्टैटिक फॉर्म के डिस्कस करते हैं एक मिनट आप कि आकाश मिसाइल सिस्टम है जोड़ा ये इंडिया ने खुद बनाया हुआ है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, और रशियन मिसाइल ईगला मिसाइल भी इत्थे टेस्ट फाइड किया गया। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है कि ईगला मिसाइल है जी इंडिया ने किस कंट्री तो बोरो की सी, किस कंट्री तो खरीदी सी? तो इंडिया ने ईगला मिसाइल रशिया तो बोरो की सी। ठीक है, जिस तरीके ना स्पाइक बारे पूछा जा सकता है कि स्पाइक मिसाइल इंडिया ने किहड़ी कंट्री तो लीती है? इजराइल तो लीती गई है। S-400 मिसाइल किन्ना तो लीती है?
रशिया तो लीती है। LMG गन्स किन्ना तो लीतियां ने, इजराइल तो लीतियां ने। अपाचे चिनूक हैलीकॉप्टर किन्ना तो लीते ने, USA तो लीते ने। ठीक है, इस तरीके नाल पूछे जा सकते। बेसिकली रफाल काफ़ी इंपोर्टेंट, रफाल की गल करते हैं, किन्ना तो लिता है, फ्रांस तो लिता है। ठीक है ने। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की गल करते हैं तो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा एंडर्न ने इन्हों द्वारा क्लाइमेट एमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। क्लाइमेट एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई और अनाउंस किया गया है कि कार्बन न्यूट्रल बननगे 2050 तक। जिस तरीके नाल जापान द्वारा 2050 अनाउंस किया गया कार्बन न्यूट्रल करने के लिए, सिमिलर तरीके नाल न्यूजीलैंड द्वारा भी 2050 टारगेट अनाउंस किया गया। चाइना द्वारा 2060 अनाउंस किया गया सी। ठीक है जी। अच्छा, इसी दे नाल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लाइमेट एमरजेंसी डिक्लेयर करने वाला फर्स्ट कंट्री केड़ी बनी सी? क्लाइमेट एमरजेंसी डिक्लेयर करने वाली फर्स्ट कंट्री बनी सी UK। ये भी याद रखना, यानी कि ब्रिटेन। नेक्स्ट है सिंगापुर रिलेटेड एक न्यूज़ थी कि सिंगापुर फर्स्ट ऐसी कंट्री बनी है जिसने लैब ग्रोन मीट नू अप्रूवल दी है। बेसिकली कि ਜਿਹੜੇ एनिमल्स ने उन्होंने स्लॉटर नहीं किया जाएगा, उन्होंने नहीं मारा जाएगा, लैब दे विच ही मीट नू डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ बीन एडजस्ड द बेस्ट इन ऑर्गन डोनेशन इन द कंट्री फॉर द 6th कंजिक्यूटिव ईयर। लगातार 6वें साल ऑर्गन डोनेशन दे विच बेस्ट कंट्री केड़ी बनी है? तमिलनाडु। सेकंड ऑप्शन तमिलनाडु लगातार 6वें साल ऑर्गन डोनेशन दे विच टॉप ते रही है। अच्छा, क्वेश्चन है मेरा कि एक कह सकते हैं ऑर्गन मैमोरियल अपने तरीके का पहला ऑर्गन मैमोरियल बनाया गया रिसेंटली, ऑर्गन डोनेशन डे लंघ के गया। तो ऑर्गन मैमोरियल केड़ी स्टेट दे विच बनाया गया सी? केड़ी स्टेट और केड़ी सिटी भी दसनी है। ठीक है जी, कमेंट बॉक्स में भी दसना है। इस तो इलावा बाकी स्टेट के रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ ने, डिस्कस करते हैं। सब तो पहले कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा अनाउंस किया गया कि कोई भी परसन मैरी कर विआह कर सकता है अपनी चॉइस के नाल, ये उसका फंडामेंटल राइट है। बेसिकली रिलीजनस के बेसिस के उत्ते या कास्टिज्म के उत्ते लोगों को टॉर्चर किया जा रहा सी, जिस करके कर्नाटका दे विच एक हाई कोर्ट दे विच केस फाइल किया गया और फाइनली अप्रूवल आई है कि जजमेंट आई है कि जी किसी परसन का यह फंडामेंटल राइट है कि वह अपने किसी भी रिलीजन के विच अपने आप मैरिज कर सकता है। ठीक है, कर सकता है या कर सकती है। इसी दे नाल कर्नाटका हाई कोर्ट तो बाद पंजाब हाई कोर्ट याद रखना है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा की अनाउंस किया गया सी कजन्स दे विच जिहड़ी मैरिज है वह इलीगल है। नेक्स्ट है कर्नाटका चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा द्वारा फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया गया है कौशल्या कर्नाटका मैगजीन। बेसिकली कर्नाटका चीफ मिनिस्टर द्वारा एक यूनीक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, एक मैगजीन लॉन्च की गई कौशल्या कर्नाटका, जिस दे विच की होएगा एक डाटा होएगा एंप्लॉयर्स का, कंपनीज का, जिन्हों द्वारा किसी भी तरीके की एंप्लॉयमेंट जारी की जा रही है। ठीक है, तो जिन्हों ने नौकरी लैनी है वो की करेंगे इस मैगजीन के अपने आप को चैक कर सकते हैं कि असी कित्थे स्टैंड करते हैं, कि किहड़ी नौकरी साडे लिए बेहतर है और वह उस नौकरी के लिए अपलाई कर सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है उड़ीसा द्वारा मिशन 0F लॉन्च किया गया है संबलपुर दे विच, ताकि की है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्हों की ग्रेड F आ रही है यानी कि फेल हो रहे हैं जोड़े स्टूडेंट्स उन्होंने रिड्यूस किया जा सके। इसी दे नाल उड़ीसा दे विच इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल इंपोर्टेंट रहेगा, ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेगा कि 9th एडिशन इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज किया गया चंद्रभागा बीच उड़ीसा के पूरी डिस्ट्रिक्ट के कोणार्क दे विच है। उड़ीसा के पूरी डिस्ट्रिक्ट के कोणार्क दे विच चंद्रभागा बीच है, उत्थे इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट है गोवा गवर्नमेंट द्वारा वन टाइम सैटलमेंट स्कीम शुरू की गई है पावर कंज्यूमर्स के लिए वन टाइम सैटलमेंट स्कीम गोवा द्वारा लॉन्च की गई है। अच्छा, गोवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने इन्हों का नाम याद रखना है। इस तो इलावा इत्थे गवर्नर का नाम ज़्यादा इंपोर्टेंट बनेगा क्योंकि रिसेंटली महाराष्ट्र के गवर्नर को एडिशनल चार्ज दिता गया है गोवा का, तो महाराष्ट्र के गवर्नर कौन ने? भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी इसके बारे आप डिस्कस किया हुआ है। बेसिकली इसके बारे अगर आप गल करते हैं अप्रैल के डिस्कस किया हुआ है क्योंकि इसनों अप्रैल के इसनों बनाया गया सी।
इंटरनेशनल फाइनैंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ ਦੁਆਰਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। क्वेश्चन है कि इसका हैडकुआटर कितने है, इसका हैडकुआटर कितने है, इसका हैडकुआटर गुजरात दे विच है। गुजरात दे भी अगर आप गल करते हैं गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात दे विच इसका हैडकुआटर है। ठीक है जी, जिहड़ी बेसिकली इंटरनेशनल एसोसीएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर है, इसी दे अगर आप गल करते हैं तो यह है जिहड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिहड़ी जिस दे अंदर इंडिया की काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड ने। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गल करते हैं IFSCI की, ठीक है, इस तो इलावा इंश्योरेंस IRDAI की गल करते हैं, या फिर अगर आप होर भी जिन्नी भी ऑर्गेनाइजेशनस ने अपनिया NPCI हो गया, नैशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इस दे अंडर रजिस्टर्ड होंदियां ने। ठीक है, तो हुण IFSCA भी इस दे अंडर रजिस्टर्ड हो चुकी है। ठीक है, थोड़ा डिटेल दे विच इस न्यूज़ में डिस्कस करते हैं, हैडकुआटर्स वगैरह इंपोर्टेंट बनणगे। इस तो इलावा बाकी स्टेट्स के रिलेटेड भी न्यूज़ ने उन्होंने बारे भी डिस्कस करते हैं। सब तो पहले कि जिहड़ी ये IFSCA है 27 अप्रैल 2020 ਨੂੰ बनाई गई सी इंडिया की। गिफ्ट सिटी गांधीनगर है, गुजरात दे विच इसका हैडकुआटर है, और इंजेती श्रीनिवास नूं इसके चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया सी। ठीक है, मैंबरशिप मिली है IAIS की। 1994 दे विच IAIS बनाई गई सी और स्विट्जरलैंड दे विच इसका हैडकुआटर है। ठीक है जी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है MP रिलेटेड न्यूज़ थी कि MP द्वारा अनाउंस किया गया एड्स नूं एलिमिनेट करनगे 2030 तक। MP गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस किया गया एड्स नूं एलिमिनेट करने के लिए 2030 तक। हरियाणा की गल करते हैं, हरियाणा द्वारा योगा अनाउंस किया गया, योगा नूं एज ए सबजैक्ट लॉन्च किया गया स्कूल्स दे विच योगा नूं एज ए सबजैक्ट ऐड किया गया। नेक्स्ट है यूपी रिलेटेड दो न्यूज़ ने। यूपी की लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नूं दोबारा की किया गया 200 करोड़ के बॉन्ड्स रजिस्टर्ड किए गए हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दे विच। बेसिकली अपने डिस्कस किया हुआ अमृत स्कीम के बारे। अमृत स्कीम है जी अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इस दे अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि एक जगह नूं डेवलप किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। हुण उस जगह दे विच इंफ्रास्ट्रक्चर नूं डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए है, इन्वेस्टमेंट या पैसा चाहिए है, तो उस पैसे नूं लेके आने के लिए लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने की करिया 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी किए हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। 200 करोड़ के बॉन्ड लिस्ट कराते। ठीक है, जिन्हों द्वारा लोगों तो इन्वेस्टमेंट की जाएगी और लोगों द्वारा एक अमाउंट इकट्ठी कर ली जाएगी। उस अमाउंट के नाल की किया जाएगा, अमृत मिशन को इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है जी, याद रखना है। लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऐसा करने वाली 9वीं बन चुकी है इंडिया की। नेक्स्ट है यह न्यूज़ भी काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगी कि जेडे मनसुख लाल मंडाविया ने आप डिस्कस किया शिपिंग मिनिस्ट्री का नाम चेंज किया गया। शिपिंग मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके कर दिता गया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज मनसुख लाल मंडाविया राज्य सभा MP ने गुजरात तो। इन्हों द्वारा एक मीटिंग की गई ताकि लग्जरी क्रूज सर्विस की शुरुआत की जा सके। रिवर सरयू इन अयोध्या है जिहड़ा अयोध्या की अगर आप गल करते हैं भगवान राम की जन्मभूमि के नाम तो जानी जाती है, तो अयोध्या के टैंपल बनाया जा रहा है। अयोध्या के जिहड़ा अयोध्या सिटी है ये सरयू रिवर के किनारे है। जिस तरीके आप हुगली रिवर के किनारे कोलकाता डिस्कस करते हैं, ठीक है, गुवाहाटी डिस्कस करते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर के किनारे, तो सिमिलर तरीके दे नाल अयोध्या है जो सरयू रिवर के किनारे है और उत्थे एक लग्जरी क्रूज सर्विस अपने तरीके की पहली लग्जरी क्रूज सर्विस नूं लॉन्च किया जाएगा। इस दे लई मनसुख लाल मंडाविया द्वारा मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। ठीक है जी, याद रखनी। असम गवर्नमेंट की गल करते हैं। असम गवर्नमेंट जल्दी ही अपना 6वां नेशनल पार्क लेके आ रही है, रायमोना नेशनल पार्क। बेसिकली अपने डिस्कस किया अगर आप असम की गल करते हैं तो मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क और दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क। ये 5 नेशनल पार्क ने असम के। 6वां नेशनल पार्क रायमोना नेशनल पार्क के लिए मैप जारी कर दिता गया। ठीक है, इस तो इलावा एक आप डिस्कस किया देहिंग पतकल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जी उसनों नेशनल पार्क बनाया जा रहा है।
ठीक है, इसनों हजे बनाया जाना है, फाइनली इसके जोड़े मैप वगैरह ने उन्होंने लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, पर ये हजे अंडर प्रोसैस है, कह सकते हैं कि अंडर प्रोसैस है। तो 6वां नैशनल पार्क किसनों गिनिया जाएगा? रायमोना नैशनल पार्क नूं। रायमोना नैशनल पार्क असम का 6वां नैशनल पार्क बनन जा रहा है। ठीक है जी, ये भी याद रखना, दिहिंग पत्तल भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इस तो इलावा रायमोना नैशनल पार्क भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज दे लिए बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन नूं लाइक और शेयर जरूर करते रहो काइंडली अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।